Hello everyone, hope you all are doing well and let's start our day with solving a problem. ये जो प्रॉब्लम है दिस प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम आइसोथर्मल प्रोसेस जो कल हमने डिस्कस किया था. सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट यूजिंग द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि यू हैव 5 मोल ऑफ आइडियल गैस आर एक्सपेंडेड isothermally. So process is isothermal. So please understand the process is isothermal. The moment I am saying process is isothermal, you should understand that various things related to isothermal process. What do we have? What do we know? Isothermal का मतलब है temperature difference is zero, no change in temperature. Okay. So the moment I am telling no change in temperature, जो internal energy change होता है that is delta U is zero. हमने डिस्कस किया था what is delta U, NCV delta T, and delta T is zero. So NCV delta T is zero and that's why delta U is zero. Clear? Okay. Similarly, what is delta H? Delta H and CP delta T and again delta T is zero. So delta H is zero. ठीक. तो ये सारी बेसिक चीजें आपको पता हो गई तो आगे पढ़ते हैं. So 5 mole of ideal gas are expanded isothermally from initial pressure of 0.4053 megapascal to a final pressure of 0.103 megapascal. Calculate Q, W, delta U, delta H. Also calculate about process. So the moment this is irreversible, इसका मतलब है कि ये जो process होगा वो irreversible process होगा. तो irreversible में आपको ये values निकालने हैं and then same values आपको निकालने हैं reversible process में. हाँ, okay. So आप क्या करेंगे? मैं आपको बताया था be aware with dogs. What do we have here? Dogs. Dogs. हाँ. So first of all, the moment you see megapascal क्या होता है, you know 1 atm. 1 atm is equal to 1.013 into 10 to the power 5 pascal. Okay, ऐसे लिखते हो. तो अगर आपको 10 to the power 6 करना हो यहाँ पे तो क्या करेंगे? So what you can do is 1.013 into 10 to the power 5 into 10 divide by 10 pascal. ये यहाँ पे आ जाएगा 10 to the power 6 हो जाएगा और ये जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो गई? मेगा पास्कल हो जाएगी. सो यू कैन राइट 1.013 मेगा पास्कल बाय 10. ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस. तो क्या हो सकता है अगर आप 1 atm की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1 atm, सो 1 atm इज इक्वल टू 0.1013 मेगा पास्कल. ठीक है. सो ये इसकी बातें कर रहा है. आगे आइडिया समझ में आ गया. तो 1 atm is equal to 0.013. So I think it has to be 13, correct? तो so that okay. So आप क्या बोल सकते हो? So initial pressure is P1. P1 क्या है? P1 है 0.4053. So this is 4 atm, correct? This is 4 atm. And what is P2? That is the final pressure we have is 1 atm. Okay, so you know these things. Done. Let's do it. Number of moles, n की value is given. Number of moles, n is equal to 5. What does we have? Ideal gas. The process is isothermal. So I'll write isothermal. Isothermal. सबसे पहले irreversible process की बात कर रहे हैं. Okay, so for isothermal irreversible, you know the moment you're talking about irreversible process, you write work done. Work done is equal to minus of P external into V2 minus V1. You write like this. Also, what do we know? Delta U is 0. ठीक है. So क्या होगा? Delta U is equal to Q plus W. So Q is equal to minus of W. ठीक है. तो अगर आपको W निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो and you can just insert minus of sign. So what you will get? Let's write it. Q is equal to minus of what is this W minus P external V2 minus V1. So you are getting P external V2 minus V1. अब आपका प्रॉब्लम क्या है? Do we have final and initial volume? So no, we have pressure given, we have temperature given, okay, and we have
number of moles given. So we have ideal gas P, T and what? Pressure given, temperature given, number of moles given. So PV is equal to nRT, we can find the volume. So just I'm putting it here, P external, V2 कैसे लिखेंगे? nRT by P1 minus nRT by P2, ऐसे लिख सकते हैं, ओके. सो पुटिंग द वैल्यूज आल्सो. अब बोलोगे सर P एक्सटर्नल नहीं समझ में आ रहा, क्या P एक्सटर्नल गिवन है? दिस टू ए फाइनल, सी फाइनल प्रेशर ऑफ दिस वन. सो क्वेश्चन क्या है, देखिए जब भी आपको मैं बता रखा हूँ, जब आपके पास P एक्सटर्नल गिवन नहीं होगा, सो फाइनल प्रेशर क्या होगा, वही आपका P एक्सटर्नल हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज योर P, दिस इज फाइनल. सो लेट्स पुट इट हियर. व्हाट इज फाइनल? 1 atm. So writing 1 atm, 1 into nRT 5. Let's put all the nRT outside. सारे nRT को बाहर निकाल देंगे, तो क्या होगा? 5 into क्या हो जाएगा? R की वैल्यू 8.3, करेक्ट. 8.3 डालें, कौन सा डालें जो हमें 0.0821, that will be better. So 0.082. Then R की वैल्यू हो गई. टेम्परेचर की वैल्यू बताइए, टेम्परेचर कहाँ गया? Where do you have temperature? Calculate the 5 moles radical expanded isothermally. Do I not get temperature? Temperature. Okay, temperature 293. Sorry. Really sorry. Constant temperature is T is equal to 298. Really sorry. That's what I was searching. 298 के ना, so 298 into क्या हो जाएगा? P1 क्या है आपका? P1 है 1/4 minus 1. ठीक है, 1/4 से आपका क्या है? फाइनल प्रेशर आपका क्या हो रहा है? 1 हो रहा है. So what do we are getting? We will be get 5 into 0.082 into 298 into क्या होगा? -3/4. So you will be getting some value in negative. Just multiply this. This will be coming in liter ATM. Convert this liter ATM to joule using 101.3 joule is equal to 1 liter ATM. Okay. So 1 liter ATM is equal to 101.3 joule. So what you will get? You will get value here. I'll put the value minus 16.889. So this is minus 16.889. Minus of 16.889 we are getting. ठीक है, minus of 16.889 we are getting. ठीक है. So ये आ गया आपका वर्क डन आया है आपका किसमें? ये आपका वर्क डन आया है रिवर्सिबल प्रोसेस का. अगर आप वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस करो, क्या हो जाएगा बताइए? याद कीजिए, माइनस ऑफ nRT ln ऑफ क्या होगा? V2 माइनस V2 बाई V1. ठीक है, ये एक्सपेंड कर रहा है. तो मैंने क्या बताया था कि एक्सपेंड में वर्क डन निगेटिव आता है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये प्रोसेस आपका जो निगेटिव वर्क देगा या नहीं. यानी कि V2 ज्यादा होना चाहिए, V1 कम होना चाहिए. ठीक है, तो V2 ज्यादा होना चाहिए, V1 कम होना चाहिए. तो हमें पता नहीं है, कैसे करेंगे? P1 बाई P2 करना पड़ेगा. V2 ज्यादा होगा, एक्सपेंड में डेफिनेटली V2 ज्यादा होगा, P1 V2 और V1 आपका क्या होगा? कम होगा. तो ये पॉजिटिव, T पॉजिटिव, R पॉजिटिव, N पॉजिटिव, ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आ रही है. दैट्स फाइन. यानी कि वर्क डन जो होता है वो आपका नेगेटिव आना चाहिए. ओके. सो पर हमें V2 बाय V1 नहीं पता है. सो मैं क्या करूंगा? nRT ln ऑफ P1 बाय P2 कर सकता हूं. तो लेट्स राइट इट हियर. क्या आएगा बताइए? -5 into क्या आएगा बताइए? माइनस ऑफ 5 into 0.0821 into 298 ln of 4/1. So you are getting, I will write the value 9.136 kilojoule. This is kilojoule. So आप क्या देख रहे हो? मैंने कल आपको बताया ही था कि जब एक्सपेंशन प्रोसेस होता है तो वर्क डन इन एक्सपेंशन की बात करेंगे तो वर्क डन
क्या होता है, इरिवर्सिबल, आपके वर्क डन रिवर्सिबल से ज्यादा होता है। किसमें, इन एक्सपेंशन। अगर आप बात कर रहे हो क्या रिवर्सिबल प्रोसेस ज्यादा कब आता है इरिवर्सिबल से, जब आप बात कर रहे हो किसकी, कंप्रेशन की। तो ये जो है आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने पे भी आपको चीजें दिख गई कि जब आपका वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है किसमें, एक्सपेंशन में, वो क्या आएगा, कम आएगा, उसकी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगी वो कम आएगी। किसमें, आपके एक्सपेंशन प्रोसेस में। किससे, इरिवर्सिबल, वर्क डन इरिवर्सिबल से। देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द विच कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस में क्या है, वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल, वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर देन वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसकी बातें हमने कल करी हुई थी। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपकी किसकी, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क डन। अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो इसमें आप आराम से कर सकते हो। अब जो बातें हम करेंगे, जो एक प्रोसेस हमारा बचा हुआ था, कौन सा था, एडियाबैटिक प्रोसेस, उसका थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। तो जिसको जल्दी से आप नोट करो, फिर हम लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक में जो क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, ये सारी बातें हम जानेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। ओके, सो सारे लोग हेडिंग डालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे खासियत वाली बात ये होती है कि उसमें जो आपका हीट या एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। सो नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग्स। उसमें आपका जो है हीट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है तो लिखेंगे कि एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, no exchange of heat between system and surroundings, between system and surroundings, no exchange of heat, no exchange of heat between system and surroundings। क्लियर, ओके। सो क्या है, यानी कि Q जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, यानी कि अब जो है आप हीट का ट्रांसफर नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो जब हीट का ट्रांसफर नहीं करने वाला, चलिए पहले आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास चलते हैं। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड सिंस ये आपका जीरो हो गया है, सो क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। वेरी सिंपल। सो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन वर्क, वर्क जैसा होगा वैसा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। अब आपको क्या पता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। सो इफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, ठीक है, क्या होगा, W होगा पॉजिटिव,
W होगा पॉजिटिव। और जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम यानी कि वो क्या कर रहे हो आप, कंप्रेस कर रहे हो, यानी कि प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, कंप्रेशन प्रोसेस होगा। कंप्रेशन प्रोसेस होगा। तो जब ये W पॉजिटिव है यानी कि डेल्टा U पॉजिटिव होगा, और जब डेल्टा U पॉजिटिव होगा तो आप क्या बोलोगे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। करेक्ट, यानी कि इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज करेगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जब ये इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है, ये समझ में आया क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हो वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम का क्या मतलब है, क्या पर W क्या होगा, नेगेटिव होगा। W क्या होगा, नेगेटिव होगा। W नेगेटिव है यानी कि क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम, यानी कि आपने किसकी बात की है, आपने बात की एक्सपेंशन की। ठीक है, जब एक्सपेंशन की बात की है तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा U जब नेगेटिव है यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है, इंटरनल एनर्जी decreases, and that's why temperature of system decreases। ठीक, तो ये जो बेसिक पॉइंट है इसको थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है। क्या कि जब आप बात कर रहे हो किसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस इंटरनल एनर्जी, सिंस देखिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि जब भी आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन में वर्क डन बाय सिस्टम, एंड जब वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है तो वर्क डन इज नेगेटिव, एंड वर्क डन इज नेगेटिव, देन डेल्टा U इज नेगेटिव, देन डेल्टा U इज नेगेटिव, देन व्हाट इज डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये जब नेगेटिव है इसका मतलब है कि U इनिशियल इज मोर देन U फाइनल, यानी कि आपका इंटरनल एनर्जी कम हो गया है। और व्हाट इज डेल्टा U, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, NCV डेल्टा T, और डेल्टा T को आप T फाइनल माइनस T इनिशियल बोल सकते हो। जब ये नेगेटिव है यानी कि T इनिशियल इज मोर देन T फाइनल, यानी कि टेम्परेचर भी तो कम हुआ है। क्लियर? So what exactly they are talking about is very simple। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्या होता है दोनों प्रोसेस, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंप्रेशन प्रोसेस, वर्क डन बाय द सिस्टम इज एक्सपेंशन प्रोसेस। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कोई बोले आपको तो क्या बोलोगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब, आपको रटना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। इस थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप रटने बैठ गए तो हजारों फॉर्मूले मिलेंगे, तो प्लीज रटना नहीं है, आपको समझना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। द मोमेंट एडियाबैटिक आपके दिमाग में आया तो यू शुड अंडरस्टैंड एडियाबैटिक मींस Q इज जीरो, देन यू शुड नो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, याद कीजिए हमने हर प्रोसेस में इसको लिखा है और यहां से बातें को शुरू की है, तो आप पेपर पे शुरुआत यहां से ही करेंगे। ठीक है, ओके, तो जब आप लिखोगे डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, Q इज जीरो in the process of adiabatic, so delta U is equal to W। अब आपको कोई बोलेगा कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो आपको वर्क डन की जानकारी वो देना चाहता है। सो एक्सपेंशन, वर्क डन इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई डेल्टा U इज नेगेटिव, सो व्हाट, टेम्परेचर इज, टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो अगर बोलेगा कि यही होता है प्रोसेस, सिंपल, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, अब समझ, सिस्टम टेम्परेचर डिक्रीजेस, system temperature increases, nothing happens, system temperature decreases। any adiabatic compression, system temperature increases। ठीक है, समझ, इसको ऐसे मैं समझा दूं कि अब बाहर से तो कुछ एनर्जी दे नहीं रहे, बाहर से तो कुछ एनर्जी दे नहीं रहे, तो जो वर्क डन की एनर्जी होगी ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो जो सिस्टम पे जो वर्क डन किया गया ना, यू नो वर्क डन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क डन की जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, सिस्टम के अंदर जाके और वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी।
क्लियर। ठीक इसी तरीके से अगर एक्सपेंशन हुआ तो क्या सिस्टम ने कुछ वर्क किया, यानी सिस्टम क्या है, थोड़ा सा कमजोर हो गया है बेचारा, वो काम किया है, सिस्टम कुछ काम किया है, तो वो क्या करेगा, काम करने के कारण उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, कम हो रही है, तो जब उसकी एनर्जी कम हो रही है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप आराम से सकते हो, और इसको आप चाहो तो आराम से लाइन में लिख भी सकते हो। ठीक है, इसकी बातें करने के बाद अब आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे क्या है डेल्टा यू। अब किसी तरीके से अगर हम डब्ल्यू बता दें, किसी तरीके से अगर आपको मैं डब्ल्यू बता दूं, तो आप आराम से जो है सो डेल्टा यू पता कर सकते हो, और अगर डेल्टा यू बता दूं तो डब्ल्यू पता कर सकते हो। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। सो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, चलिए हेल्प कहां से लेंगे, यहां से हेल्प लेने वाले हैं। सो व्हाट वी नो दैट W इज इक्वल टू डेल्टा यू। सो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, NCV डेल्टा T, दैट इज NCV T2 माइनस T1। ओके, जरूरी नहीं कि आपको CV की वैल्यू गिवन हो, कभी कभी क्या है आपको CV का दूसरा एक्सप्रेशन यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको रेड कलर में लिख दूं दैट CV इज इक्वल टू R बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, तो अगर ये है तो अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू N, CV को आपने लिखा R डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, एंड दिस इज T2 माइनस ऑफ T1। जरूरी नहीं कि आपको T1 और T2 गिवन हो, टेम्परेचर डिफरेंस गिवन हो, टेम्परेचर वैल्यूज गिवन हो, तो आप क्या कर सकते हो, प्रेशर वाला टर्म में लिख सकते हो, प्रेशर के टर्म लिख सकते हो। तो चलिए इसको मैं प्रेशर के रूप में बदल दूं, कैसे प्रेशर के रूप में बदलूंगा, या अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना पसंद करो तो क्या होगा, इसको एक साथ लिखिए, किसको, nRT। सो क्या लिखोगे, 1 बाई 1 माइनस गामा, क्या लिखोगे, nR T2 माइनस nR T1। ठीक है, सो क्या हो गया आपका, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, डेल्टा यू क्या हो जाएगा बताइए, nR T1 माइनस nR T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो वही मैंने बोला, अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम के रूप में लिखना है, सो व्हाट डू वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। कहाँ लिखा मैंने, कहीं लिखा कि नहीं, PV इज इक्वल टू nRT, तो आपको पता है ये PV इज इक्वल टू nRT। तो ये एक फार्मूला पता है आपको, इसी फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, P1 nRT1 को आप P1 V1 लिख सकते हो, सॉरी दिस इज अगेन 2 ना, this is 2, this is 1, so P2 V2 minus P1 V1 by 1 minus gamma। तो ये भी एक फार्मूला है। अब देखिए क्या है ना, फार्मूला इतने बनते चले जाएंगे, दिक्कत क्या है कि आप बोलोगे सर जितने फार्मूला है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फार्मूला याद नहीं करना, रिपीट कीजिए इनको, लिखिए 4 बार 5 बार 10 बार लिखिए, आपको क्या है अभी समय लगेगा, नो वरी समय लगेगा, पर एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए। एग्जाम में आपको प्रोसेस देखते ही आपको फॉर्मूला आ जाना चाहिए, वो कैसे होगा, उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी आपको लगातार उस फॉर्मूले को, इसको डिराइव करते रहिए ना, क्या दिक्कत है, इसको आप लिखते रहिए, आपको डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी याद हो गया होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी याद हो गया होगा, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा टी डेल्टा वी होता है, ठीक सिंपल, ठीक हो। तो ये जो प्रोसेस है डिफरेंट थिंग से आपको याद हो गया होगा, कब, जब आप लिखोगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। सो क्या होता है डेल्टा, सॉरी वर्क डन क्या होता है, यू नो पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा वॉल्यूम दे ही दे, आपको टेम्परेचर प्रेशर भी दे सकता है, तो क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 क्या हो जाएगा, nRT1 बाय P1 माइनस nRT2 बाय P2। तो क्या लिख सकते हैं, P माइनस P एक्सटर्नल nR T1 बाय P1 T2 बाय, sorry again, sorry this is 2, this is 1, 2 तो ये है आपका वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके फॉर्मूले बहुत बहुत आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर्मूले तो आएंगे ही, आपको क्या करना, प्रोसेस समझ में आना चाहिए। ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे किसी भी प्रोसेस में, और वहाँ से चीज़ें डिराइव होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, और ये जो है इनको याद रखना है, इनको याद रखना है, इनको याद रखना जरूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, कौन सा प्रोसेस है ये पता होना चाहिए। और अभी ही आप घर पे बैठ के जितना ज़्यादा आप डिराइव करोगे, जितना ज़्यादा आप इनको लिखोगे प्रॉब्लम्स करते वक्त, प्रॉब्लम्स कर सीधे फॉर्मूला के पीछे नहीं भागेंगे, प्रोसेस लिखेंगे और डिराइव करके लिखिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपको, आप घर पे बैठे हो ना, समय इनफ है ना आपके पास, एग्जाम में समय कम रहता है, तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे आप आराम से बनाएं। ठीक है, चलिए आराम से बनाना ही है। तो क्वेश्चन लिखिए, क्या है, कैलकुलेशन, कैलकुलेट। ओके, इससे पहले एक और चीज मैं बता दूं, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपके फाइनल टेम्परेचर के बारे में ही पूछा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर जनरली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, खासकर एडियाबैटिक प्रोसेस में। सो वी आर गोइंग टू सी कैलकुलेशन ऑफ calculation of final temperature, final temperature in adiabatic process. ओके, सो अब सिंपल सी बात है, क्या है सिंपल सी बात, डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाएगा। और व्हाट वी नो दैट डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है। तो क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, हमें क्या पता करना है, इसको लिखेंगे एन सी वी टी टू माइनस टी वन, यानी कि आपको टी टू पता करना है, तो आप माइनस पी एक्सटर्नल, यहाँ भी आप क्या करो, किसका यूनिट लिया है, टी वन, ताकि हमें ज़्यादा वेरिएबल ना चाहिए। तो आपको क्या हो, गिवन होगा एन आर टी वन बाई पी वन, एन आर टी टू बाई पी टू। ठीक है, CV को क्या लिख सकते हैं, CV को आप आराम से लिख सकते हो R बाई वन माइनस गामा लिख सकते हो, और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, दैट कैन बी समटाइम्स P2 is, and again this is, oh many times I'm going wrong here now. So nRT2 by P2 minus nRT1 by P1. What you can do, NR cancel, NR cancel. So what you can see, T2 minus T1 by 1 minus gamma is equal to minus of P external, T2 by P2 minus T1 by P1. तो ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला कर लो, जैसा भी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, पर बेसिक शुरुआत तो हमने वहीं से की है, तो एक फॉर्मूला डिराइव कर लिए। लिखेंगे प्रश्न, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, सिंपल है, 1 मोल दिए यानी n की वैल्यू गिवन है, मोनो एटॉमिक गिवन है, यानी कि आपको CV वैल्यू पता चल जाएगी, 3/2 नहीं, FR/2 याद है ना। ओके, सो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस expands adiabatically at initial temperature T against a constant external pressure 1 atm, constant external pressure 1 atm, from 1 liter to 2 liter, from 1 liter to 2 liter, from 1 liter to 2 liter. Find out the final temperature.
फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। सो प्रॉब्लम है आपके पास, m की वैल्यू 1 है, Cv है, Cv क्या 3R/2 हो जाएगी, और क्या मोनोएटॉमिक गैस है, T1 क्या है, T है, T2 हमें पता करना है, और क्या है P एक्सटर्नल गिवन है 1 atm, ठीक है, और V2 गिवन है, V2 इज 2 liter, V1 is 1 liter. Let's do it now. So NCV delta T, delta U is equal to W. So NCV delta T, or let's write it T2 minus T1 is equal to क्या होगा, minus of P external V2 minus V1. See, I'm writing everything. Okay, so this is N की वैल्यू 1 है, CV की वैल्यू क्या है 3R/2. So 3R/2 into T2 पता करना है, T1 गिवन है T, माइनस P एक्सटर्नल 1 atm, V2 क्या है 2 है, 2 minus 1, सो T2 क्या हो जाएगा, ये 2 minus 1 2, 2 minus 1 1 हो गया, सो 3R/2 T2 minus T1 is equal to -1, सो T2 is equal to क्या होगा, T minus 2/3R। सो T के टर्म में इसका आंसर निकल के आएगा, T के टर्म में इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रॉब्लम लिखिए, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस या एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, Cv की वैल्यू गिवन 1.5R, Cv 1.5R, इनिशियली at T1 is equal to 298 Kelvin and 1.013 megapascal, expands adiabatically and irreversibly until it is in equilibrium with P2, pressure 2, that is 0.1013 megapascal. 0.1013 megapascal. Find the final temperature. Find the final temperature. Find the final temperature. Okay. So चलिए देखते हैं क्या करना है। We have again यहाँ पे आपको फिर से प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स है, तो P1 इज इक्वल टू क्या था बताएंगे क्या, P1 we had is 1.013 megapascal. So P1 1.013 megapascal, straight away 10 atm I'm going to write it. P2 we have is 0.1013 megapascal and this is equal to 1 atm. Then what else we have given, T1 is 298 Kelvin. Monoatomic gas, monoatomic. So CV value 1.5R, that is equal to 3/2R. Okay, then what is given, the process expands adiabatically and irreversibly, so we can write like this, delta U is equal to W, so NCV delta T, let's write it T2 minus T1 is equal to क्या होगा, minus of P external V2 minus V1. Do we have V2 minus V1? No, we don't have. तो अब क्या है, हमें पता करना पड़ेगा, V2 पता नहीं है, V1 पता नहीं है, so we will write in terms of temperature and pressure. So M की वैल्यू क्या है नहीं पता है, let's no problem, and then this is CV is 3/2R, T2 I have to calculate, this is 298, P external, do we have P external? So एक लाइन आप पढ़ेंगे, इस लाइन में क्या बोला है, until it is in equilibrium with P2, यानी एक्सटर्नल प्रेशर आपका क्या हो रहा है, P2 हो जा रहा है। सो क्या है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान, कुछ चीजें दी रहती है, किसी न किसी तरीके से चुपचाप वो दे देगा, आपको समझना है। सो दिस इज P एक्सटर्नल इज P2 दैट इज 1 atm इनटू V2 नहीं पता है, सो V2 नहीं पता है तो कैसे पता करेंगे, NR T2 by P2 minus NR T1 by P1. So NR and NR cancel. So we have 3/2 T2 minus 298 is equal to क्या होगा बताइए, -1
T2 की वैल्यू बाय P2 की वैल्यू वी हैव 1 माइनस T1 की वैल्यू इज 298 बाय P1 की वैल्यू इज 10. So T2 क्या आएगा आपका? T2 is give you the value. T2 we have is 190.7. T2 is 190.7. ठीक है, तो T2 ही एक कल है, इसमें आपका वेरिएबल है जो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो आपको देखो क्या है, क्वेश्चन बोला कि एडियाबैटिकली एक्सपेंड्स, यानी कि एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है. और जब आपने प्रोसेस को सॉल्व किया तो आपने क्या देखा कि इनिशियल टेम्परेचर 298 था, फाइनल टेम्परेचर 190 हो गया, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है. यही तो बातें हमने करी भी थी ना जब हमने एक्सपेंशन प्रोसेस, जब हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की शुरुआत की थी. क्या बोला था कि जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है. टेम्परेचर इंक्रीज होता है कब? जब आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है. ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि कंप्रेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, ओके. तो इन सारी चीज़ों को आप फिजिक्स में भी याद रखिए, जब फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होगे तो वहाँ भी आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इनको पढ़ते रहिए और फिर जो है सो हम आगे बात करते हैं. आगे क्या बात करते हैं, कुछ और जो एडियाबैटिक के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. पहले इन तीन को सॉल्यूशन जो लिखा है उसको जल्दी से नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. जैसे हमने, अगर आपको याद होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, PV is equal to constant, that is the equation of state. Then एडियाबैटिक के लिए हम बात करने जा रहे हैं सेम इक्वेशन ऑफ स्टेट. हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट. ये आपको हेल्प करता है तो इसको जानना बड़ा जरूरी है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात हम करने जा रहे हैं. सो इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, सो क्या होता है, सारे प्रोसेस के लिए क्या है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, सो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर गामा की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है. याद होगा आपको. ओके, सो PV टू द पावर गामा कांस्टेंट है तो आप लिख कैसे सकते हो, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा. क्लियर? ठीक है, व्हाट इज गामा? Cp बाय Cv, द पॉइजन रेशियो. याद होगा. ओके, अब क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं, एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों है चेंज होता रहता है. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज होता है. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबारिक में आपका क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है. पर एडियाबैटिक में आपका तीनों चेंज होता है, तीनों चेंज होता है. तो आपका जब PV का रिलेशन है तो जरूरी थोड़ी कि PV के रिलेशन से काम चले, VT का भी रिलेशन चाहिए होगा और VP का रिलेशन चाहिए होगा. ठीक है, या आपका P और T का रिलेशन चाहिए होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन we can solve this ना, we can find different relations. So अगर मान लीजिए मुझे P और T का रिलेशन चाहिए तो कैसे करेंगे, PV is equal to nRT, PV is equal to nRT. So क्या होगा बताइए, मुझे V is equal to nRT by P. So V is proportional to T by P. Correct? V is proportional to T by P. So what I am going to do, P1, V1 की जगह पे आप सिंपली पुट कर दीजिए
T by P to the power gamma is equal to constant। यहां से मैंने लिख दिया। सो क्या हो जाएगा बताइए, P to the power 1 minus gamma into T to the power gamma is equal to constant। इसको समझने में कोई दिक्कत, इस पार्टिकुलर थिंग को समझने में कोई प्रॉब्लम क्या? सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया है, v को, जो यहाँ पे v था, इस v को रिप्लेस किया है। इस v को कैसे रिप्लेस किया है? t by p से रिप्लेस किया है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग हियर, t by p टू द पावर, v टू द पावर गामा था, v टू द पावर गामा था, तो आपने v को रिप्लेस कर दिया t by p से, तो t by p टू द पावर गामा, यानी t टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय p टू द पावर गामा, एंड दिस इज p डिवाइडेड बाय p टू द पावर गामा। को आप मैथमेटिक्स आपको थोड़ा सा आता है तो आप 1 माइनस गामा लिख सकते हो, देन वी नो दैट इज t टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो, सो p1 1 माइनस गामा t1 गामा इज इक्वल टू p2 1 माइनस गामा t2 गामा। ऐसे इसको लिखा, ऐसे इसको लिखा, ठीक है। उसी तरीके से जरूरी नहीं कि आपको पीटी का रिलेशन पता है, पीवी का रिलेशन पता है तो और चीजें जाननी नहीं चाहिए, और भी चीजें जान सकते हैं। अगर आपको रिलेशन पता करना हो किसका, वी और टी का, वॉल्यूम टेम्परेचर का, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, व्हाट डू वी नो, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो क्या हो सकता है बताइए, सिंपल सी बात है, आप P इज इक्वल टू क्या होगा, nRT/V। सो P इज प्रोपोर्शनल टू T by V। Clear? So what I'm going to do, I'm just replacing this P with T by V. So T by V into V to the power gamma is constant. So T multiply with V to the V into gamma minus 1 is constant. So what you can do is T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1। ओके, सो क्या हमने इतने हर प्रकार की चीजें लिखी है? क्या हर चीजों को याद रखना पड़ेगा? जी नहीं। क्या याद रखना पड़ेगा? इसको क्या याद रखना पड़ेगा? आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, बाकी सिंपल सा आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए और आप इस तरीके से बना सकते हो। तो दिक्कत क्या है ना कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, याद करना है, हम लोग बैठ जाते हैं कि भाई पहला होता है pv टू द पावर गामा कांस्टेंट, दूसरा होता है p टू द पावर 1 माइनस गामा t टू द पावर गामा कांस्टेंट, और तीसरा होता है कि tv टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट। अगर आप ऐसे याद करने बैठोगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब कभी न कभी गामा माइनस 1 को 1 माइनस गामा लिखोगे, कभी कुछ लिखोगे, कभी कुछ लिखोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए, चीज़ों को याद नहीं रखना है, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बाद में मुझे पता है आप कुछ दिनों बाद पूछोगे सर फॉर्मूला कैसे याद रखें। सिंपल तरीका है, गो एंड डू द प्रॉब्लम्स में फॉर्मूला का यूज जो है सीधे नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप। आपने देखा होगा मैं स्टेप करता हूँ। पहले क्या है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, मैं लिखता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मैं सीधे फॉर्मूला पर नहीं जंप करता, मैं लिखता हूँ कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी होता है। फिर मैं धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता हूँ। फॉर्मूला नहीं लिखना, अभी मेरे पास समय है, वी हैव इनफ टाइम। एग्जाम में नहीं रहेगा, तो एग्जाम में फॉर्मूला याद आना चाहिए, और एग्जाम में याद तब आएगा जब आप यहाँ पे इनफ प्रैक्टिस किए हो। क्लियर? ओके, सो चलिए एक प्रॉब्लम लिखते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे इसका यूज होगा। हम कैलकुलेट वर्क डन बाय सिस्टम, calculate work done by system in an irreversible adiabatic expansion, of 1 mole of polyatomic gas gamma 1.33, 1 mole of polyatomic gas from 300 Kelvin and 10 atm pressure to 1 atm pressure, to 1 atm pressure, to 1 atm pressure। ओके,
सो इन्होंने प्रॉब्लम में बोला कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्क डन। सो वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। फाइन, क्या हमारे पास V2 V1 है, तो हमने चेक किया, हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास प्रेशर है, तो हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे इसको माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, V2 को लिखेंगे nRT2 बाई P2 माइनस nRT1 बाई P1। P एक्सटर्नल गिवन नहीं होता है तो ये P2 के बराबर होगा, तो माइनस ऑफ P2 n को बाहर निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, सो T2 P2 माइनस T1 P1। सो हमारे पास कैलकुलेट द वर्क डन बाय सिस्टम इन 1 मोल है और R की वैल्यू है। क्या हमारे पास 1 मोल है और R की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो 1 मोल है, दिस इज 1 इंटू 0.0821। क्या हमारे पास सेकेंड प्रेशर 2 है, हमारे पास P1 वी हैव इज प्रेशर क्या है, टेन एटीएम टू 1 atm, करेक्ट। सो P1 is 10 atm, P2 is 1 atm, T1 is 300 Kelvin, T2 is laddu, I don't know, but what do we know, this is adiabatic process. The moment we know adiabatic process, the moment we know P1 P2, we can know P1, we can know T2। सो कैसे P और T का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, सर्च करेंगे P और T का रिलेशन कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि P और T का रिलेशन क्या होता है, P टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो क्या होगा, P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। वो क्या पता करना है, T2 पता करना है। इस T2 को पता करना है तो क्या बोलोगे, P1 बाई P2 1 माइनस गामा T1 गामा, यहाँ पे गामा है, ये होगा, इस गामा को उठा के यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड बाय गामा, डिवाइड बाय गामा, गामा गामा कैंसिल, सो 1 माइनस गामा बाय गामा क्या हो जाएगा बताइए, P1 की वैल्यू क्या है, 10, सो 10 टू द पावर 1 माइनस गामा की वैल्यू क्या गिवन थी, गामा इज 1.33, दैट इज इक्वल टू 4/3। सो दिस इज 1 माइनस 4/3 बाई 4/3, सो क्या हो जाएगा, दिस इज 1/3, सो दिस इज कमिंग टू बी 10 टू द पावर 1/4, 10 टू द पावर 1/4 इंटू 300। सो आपका T2 क्या आ गया है, 10 टू द पावर 1/4 इंटू 300 आ गया है। So put here P2 is minus 1, T2 is क्या है 300 into 10 रूट, ठीक है, डिवाइड बाय P2 क्या है 1 है, माइनस T1 क्या है 300 है, एंड P1 क्या है 10 है, सो दिस इज 0.0821। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। हाँ, आपको तो ऐसा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे कि ये कैसा आ गया है, 10 टू द पावर 1/4 कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जनरली ऐसा नहीं आएगा, चिंता मत, कि 10 टू 1/4 तो नहीं आएगा, ऐसा नॉर्मल सा आएगा। वैसे इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ √10, करेक्ट, यही है ना। सो √10 की वैल्यू अराउंड 3.3 आ सकती है, राइट, 3.3 आ सकती है। ये आएगा कितना, रूट 3.3 क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.67, 1.7 और 1.8 आ जाएगा, ठीक है, 1.8 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको वैल्यू डाल दी है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए और सीखिए, ठीक है, सीखिए, ठीक है। सीखने के बाद आप थोड़ा जल्दी बना सकते हो। तो अभी सीखने में आपको पेशेंस होना चाहिए, आपके पास इनफ पेशेंस कि क्या चीज़ें हो रही हैं, स्लो हो जाइए, पूरा जितना स्लो हो सकते हैं स्लो हो जाइए, प्रोसेस को देखिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि जब एग्जाम आए तो एग्जाम में एकदम फास्ट से क्वेश्चन बना सके, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को ये पे खत्म करते हैं, अगले क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और आगे की थ्योरी को देखेंगे, ठीक है। तब तक चलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।